Hello class 3, Assalamu alaikum. Today we are going to study comprehension of unit number 10 and our topic is एसल ऑन स्पोर्ट डे. ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. इस स्टोरी के अंदर आप एसल के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज एसल. एसल एक्चुअली एक डोंकी का नाम है. ठीक है, स्कूल में स्पोर्ट्स डे होने वाला है जिसमें पोनीज की रेस होगी. ठीक है, पोनीज की रेस होगी, लेकिन एसल जो है वो भी उसमें हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन पोनीज जो हैं उनकी भागने की स्पीड जो है वो डोंकी से ज़्यादा होती है. अब पोनी किससे कहते हैं? पोनी कहते हैं छोटे घोड़े को. ठीक है, अब एसल के जो दोस्त हैं मारिया और शाय हैं, वो इनके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है और कहता है कि मैंने भी इस रेस में हिस्सा लेना है. वो उसकी दोस्त मारिया उसको बीच पे लेके जाती है, उसको प्रैक्टिस करवाती है. ये बहुत मेहनत करता है, बट पोनीज जो हैं वो इससे ज़्यादा तेज़ भागते हैं. फिर इसमें एक और करेक्टर का नेम है ग्रैंडिड ल्यू. वो उसके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं. वो एक प्लान करता है जिस दिन रेस होती है वो एसल की नोज के नीचे एक स्टिक के साथ गाजर को बांध देता है, क्योंकि एसल को गाजरें बहुत पसंद होती हैं. वो इसलिए बांधता है कि जैसे ये गाजर को देखेगा और इसको पकड़ने के लिए वो ज़्यादा तेज़ भागेगा. और ऐसे ही होता है, जैसे ही रेस स्टार्ट होती है ये भागता है और ये गाजर को पकड़ने की कोशिश में मज़ीद तेज़ भागता जाता है. इसी तरह एसल जो है वो पोनी से अपनी रेस को विन कर लेता है. ठीक है, अब हम अपनी वोकैबुलरी को स्टार्ट करते हैं. स्पोर्ट डे खेल का दिन, पोनीज छोटे घोड़े, अग्रीड मुत्तफिक होना, राजी हो जाना, मच फास्टर ज़्यादा तेज, बिगर बहुत बड़ा, फास्टर तेज तर, टाइड बांधा, इन फ्रंट सामने, ब्लू द विसल सीटी बजाना, विसल सीटी ब्लू बजाना, केप्ट रनिंग भागते रहना, चीयर्ड खुशी के साथ, विंक्ड आंख मारना. ओके, लेट्स स्टार्ट ओवर रीडिंग. Eसल on sports day. It was summer. The school sports day was coming. This year there was going to be an extra race just for ponies. Shy asked if ponies could be in the race also, and the teacher agreed. Maria was worried. After all, Eसल was a donkey. Everybody knows that ponies run much faster than donkeys. Each day after school, Maria brought Eसल to the beach to practice. Eसल worked hard and was good, but the ponies were all bigger and faster. Granddad Liu heard about the problem. He knew Eसल loved carrots. He thought of a plan. On sports day, all the big ponies were in a line ready to run. Little Eसल was there too, but Shy and Maria could not believe their eyes. There was a carrot tied to a stick in front of Esel's nose. Granddad knew that Eसल would run fast to try to catch the carrot. The teacher blew the whistle. The big ponies were all very quick, but Eसल was much quicker. Eसल kept running to try to catch the carrot. Eसल won the race. Everybody cheered. The teacher gave Eसल a medal. Shy took the carrot off the stick and gave it to Eसल. Maria ran to Granddad Liu and gave him a big hug. Granddad Liu winked and smiled. Okay? Okay students, after reading we will discuss the activities of unit number 10. Part A. Answer the questions by filling in the missing words. हमने इन ब्लैंक के अंदर मिसिंग वर्ड्स लगाने हैं. ठीक है, और इनको कंप्लीट करना है जो कि हमारे बॉक्स के अंदर वो दिए गए हैं. ठीक है. नंबर 1, व्हाट वाज हैपनिंग सून एट स्कूल. तो इसका आंसर क्या होगा? द स्पोर्ट्स डे वाज हैपनिंग सून. नंबर 2, व्हाट वाज द स्पेशल रेस. द स्पेशल रेस वाज अ रेस फॉर ponies and donkeys. Number 3, who did Maria think would be too quick? The ponies would be too quick. Number 4, who thought of a plan? Granddad Liu thought of a plan. Number 5, what did Granddad Liu put in front of Eसल? He put a carrot.
in front of Essel. What prize did Essel get? Essel got a medal. Okay. Part B. True or false? Essel was a small pony. Cross. Ponies are good at running. Yes. Tick. Maria was worried about Essel. Yes. Number 4. The teacher won the race. Cross. Granddad Lou had a plan. Yes. Number 6. Maria and Shy cheated. No. Cross. Number 7. Granddad Lou won the medal. Cross. Number 8. Essel came last in the race. Cross. Number 9. Essel won a medal. Yes. Part C. Imagine. You have a camera. Show the photos you have of these. यानी वो कह रहे हैं कि आपके पास कैमरा है तो इन फोटोज़ को आप शो करें. ठीक है. एसल्स मेडल, आपने यहाँ पे एसल का मेडल बनाना है. ग्रैंडेड ल्यू विंकिंग, जब ग्रैंडेड ल्यू आंख मारे हैं उस वक्त की तस्वीर बनानी है. मारिया और शाय की तस्वीर आपने यहाँ लगानी है. ठीक है. Okay students, now we will discuss the language of unit number 10. Part A. Answer the questions by filling in the missing words. ये कुछ उन्होंने वर्ड्स हमें दिए गए हैं. A, am, all, are, it. हमने इन वर्ड्स को यूज़ करना है और नए वर्ड्स बनाने और इनको कंप्लीट करना है. ठीक है. जैसे उन्होंने हे बताया. ठीक है. हे, ले, मैं, एम, क्रैम, स्लैम, ट्रैम, all, mall, small, stall. Number 4. are, glare, stare और mare. Number 5. ate, late, fate और date. Part B. Write 3 sentences about the stories. अब उन्होंने ये वर्ड्स दिए गए हैं इस बॉक्स के अंदर. जो उन्होंने वर्ड्स हमें दिए हैं हमने इन वर्ड्स को यूज़ करना है और एक जो है वो सेंटेंस बनाना है. इसी तरह दूसरा और तीसरा भी बनाना. 3 सेंटेंसेस के अंदर हमने इन सारे वर्ड्स को कंप्लीट करना है. ठीक है. फार्मर, डॉग, चिकन, रनिंग, ट्रैक्टर, लाफिंग, ड्राइविंग, मूव. ओके. नंबर 1 पे हम क्या लिखेंगे? द फार्मर इज ड्राइविंग इन हिज ट्रैक्टर टू द फील्ड्स. नंबर 2. द डॉग इज रनिंग आफ्टर द फार्मर. नंबर 3. The cow moves while the chicken sits on the cow's back. ठीक है. Part C. Write the sentences correctly. अब हमने इन sentences को correct करके यहाँ पे लिखना है. जैसे है got, the, I, meet, shop, in the. हमने इनकी तरतीब को सीधा करना है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे I got the meat in the shop. नंबर 2 है you money got have some. यहाँ पे आएगा हैव यू गॉट सम मनी. नंबर 3. बिग गिव प्लीज माई मी ऑन. तो यहाँ पे हम इसको जब सही करके करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा प्लीज गिव मी माई ऑन बैग. नंबर 4. नो आई टुडे होमवर्क गॉट. आई गॉट नो होमवर्क टुडे. नंबर 5. टेस्टेड द नाइस वेरी केक. The cake tasted very nice. Now students, we will discuss the grammar of unit number 10. Stop and learn. Nouns. अब इसमें हमने क्या पढ़ना है? Nouns के बारे में बताना है. ठीक है. यहाँ पे इन्होंने nouns की definition भी बताई हुई है कि noun actually कहते किसे हैं. A noun is a person, a place or a thing. किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को नाउन कहते हैं और नाउन को उर्दू में हम इसम बोलते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल, अ डोंकी इज़ एन एनिमल दैट लिव्स ऑन अ फार्म. ओके. ये 3 उन्होंने एग्जाम्पल नाउन की बता दी हैं. अब पार्ट ए जो है वो हमारा नाउन से ही रिलेटेड है. उन्होंने बोला रिंग द नाउन्स. अब जो जितने भी यहाँ पे नाउन्स हैं उनको आप लोगों ने क्या करना है? सर्कल करना है. जिस तरह मैं कुछ बताती हूँ आपको. लाइन 1 में से क्या होगा? हॉर्स, टेबल. लाइन 2 से हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? बोट और मैन. नंबर 3 से हमारा हो जाएगा क्रिस्प, लंदन, फ्लावर. ओके. और यहाँ 4 से स्कूल, शूज, कंप्यूटर, माइकल.
एंड लास्ट से कोट, बैग, फादर एंड स्कूल। ठीक है। पार्ट बी, फिनिश द सेंटेंसेस बाय एडिंग नाउन्स। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे नाउन्स को ऐड करना है और इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। ठीक है। द फार्मर बॉट अ काउ इन द मार्केट। आई सी सैम ईटिंग पॉपकॉर्न्स इन द सिनेमा। नंबर 3, मैरी गेव मी अ ड्रेस from the cupboard. Number 4, I look at shops on the street every Sunday. Number 5, I have money in my bag for ice cream. ओके, अब यहाँ कह रहे हैं ड्रा अ पिक्चर दैट हैज 3 नाउन्स इन इट। आपने यहाँ पे वो तस्वीर ऐड करनी है जिसमें कम से कम 3 चीज़ों को ऐड किया गया हो। उसमें किसी चीज़, कोई चीज़ आप कोई पेंसिल बना दें, कोई जगह आप यहाँ पे जो है वो ड्रा कर दें, कोई आप यहाँ पे टेडी बियर लाइक बना सकते हैं, जो यानी 3 नाउन्स को आपने यहाँ पे लाजमी डिस्क्राइब करना है, यानी वो 3 नाउन यहाँ पे लाजमी होने चाहिए। ऐसी तस्वीर आपने बनानी है। ठीक है। पार्ट सी, लिसन एंड स्पेल। आपको जो आपकी रीडिंग है या आपका जो सेंटेंस का लैंग्वेज का पेज है या ग्रामर का पेज है, कहीं से भी आपको 10 वर्ड जो है वो लिखवा सकते हैं जो आपने ज़बानी यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है। Okay students, now we will discuss the conversation of unit number 10. Okay, what is conversation? Conversation किसे कहते हैं? Conversation होती है दो लोगों के दरमियान की बात। दो लोग जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो उसको हम, जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं उसको हम कॉन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है। सो पार्ट ए इज लुक एट द पिक्चर्स एंड टॉक अबाउट देम। हमने कह रहे हैं इन तस्वीरों को, ऊपर भी और नीचे भी जो तस्वीर दी गई है, इन तस्वीरों को गौर से देखें और इनके मुतालिक बताएं कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, या क्या कह रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू द चिल्ड्रन गो फॉर अ स्विम। बच्चे स्विमिंग के लिए, स्विम करने के लिए, तैरने के लिए कहाँ जाते हैं। व्हाट डू दे डू एट द सी साइड। वो साहिल पे क्या करते हैं। वेयर डू दे बिल्ड सैंड कैसल। और वो रेत के जो घर हैं, ये जो उन्होंने रेत के घर बनाए हुए हैं, वो कह रहे हैं वो ये कहाँ पर बनाते हैं। ठीक है। इसी तरह नीचे एक और तस्वीर उन्होंने हमें बताई गई, दिखाई हुई है, जिसमें यहाँ पे राइड्स हैं, लोग हैं, यहाँ पे स्विमिंग पूल है, उसके अंदर डक्स हैं। ठीक है। फ्लावर्स हैं यहाँ पे। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू दे यूजुअली डू एट द पार्क। वो पार्क में अमूमन क्या करते हैं। हु टेक द चिल्ड्रन टू द पार्क। बच्चों को पार्क में कौन लेकर जाता है। एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डू द चिल्ड्रन डू एट द पॉन्ड। और बच्चे जो हैं वो तालाब के अंदर क्या करते हैं। ठीक है। ये पार्ट आप लोगों ने इनको सेंटेंसेस में आपने इनके आंसर लिखने हैं। जैसे मैं पहले का आपको बताती हूँ, वेयर डू द चिल्ड्रन गो फॉर अ स्विम। चिल्ड्रन गो फॉर अ स्विम टू बीच और सी साइड। ओके। तो बाकी के जो आंसर हैं वो आप लोगों ने अपने ट्यूटर की या अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसको खुद लिखने हैं। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नो थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छे तरीके से इस चैप्टर को लर्न करना है।